Is my screen visible to you all? Just tell me yes. Okay, fine. So, Hema, I guess you only did the homework, correct? बाकी किसने किया नहीं था? किसने किया हेमा को छोड़ के? Yes. Yes. I don't think. Okay, Hema, actually, I did not check your homework. I'll check and tell you. Okay, Yes, sir. till that time, we'll continue. I guess we Yes. have completed 2 chapters, right? हाँ. थर्ड वाला करने का था, बराबर? Reply. First and second was done, and third we have to do, right? श्लोक आपने अभी यस बोला कि पहले वाले इसमें यस? Okay, everyone, please reply. फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है, थर्ड करना है, हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो आना चाहिए. ओके, निधि सेज यस. फाइन. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ तो कोई बता सकता है? लाइक फर्स्ट चैप्टर क्या बेसिस था उसका? अगर कोई इवन मेरे को टू ये बताए कि मतलब 2 things that we learn in first chapter, then we'll continue. Any 2 things, and or the main thing that we learn. What was it in the first chapter? Okay, anyone, you can unmute and answer. You can type it in the chat box. I don't care. But just tell me what we did in the first chapter. Uses of va, right? Okay, तो uses of va is correct. But उसको क्या बोलते हैं? हम लोग ने क्या सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, बराबर? फर्स्ट चैप्टर में सेंटेंस फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ पार्टिकल्स, लाइक सिर्फ मो भी पढ़ा था, नो भी पढ़ा था, करेक्ट? इज इट क्लियर? ये क्या था कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर वाज दैट, राइट? ओके, 1 minute, समथिंग हैपेंड. Okay, is my screen visible? Yes. Okay. One, I'll just leave and join again क्योंकि ये बहुत confusing है. 1 minute, हाँ. Okay, leave it. अगर मैं गया तो शायद से end हो जाएगा call everyone. Okay, fine. I'll just put some other thing here. Okay. Okay. So the first chapter was based on sentence formation, right? So I'll just revise it quickly. Not revise मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या किया था. नहीं तो आप वापस ये करोगे. Okay, the first chapter bit. Okay. Okay, so this is the first chapter. तो first वाला था noun वा noun des, then था noun वा noun जारिमा से. Okay, जारिमा से किसका अपोजिट है? कोई बता सकता है मुझे? जारिमा से किसका अपोजिट है? You can unmute and answer too. No problem. Oh, sorry. It's a negative form of yes. Yes की des. This. हाँ, okay, correct. Okay, तो des का उल्टा है जा देवा रिम, जा रिमा से यानी तो देवा रिमा से. Okay. Okay. Then we have learned कि कैसे एक पर्सन को वो आइडेंटिफाई करना है वगैरह. देन नाउन का, सॉरी नाउन नहीं, नो पार्टिकल का यूज किया था. नो इज नो शूज बिलोंगिंग. देन वी हैड लर्नड मो पार्टिकल्स यूजेस. उसका यूज क्या था? मो पार्टिकल इज लाइक ऑल्सो और टू, बराबर? फिर ये का बताया था. का इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू शो अ क्वेश्चन. ओके, so this was all in the first chapter. Now we move on to the second chapter.
second chapter. Here it is. Okay. Okay. So tell me, what have we learned in the second chapter? Second chapter का overview बताओ. Quickly. देखो आप जितना टाइम पास करोगे उतना स्लो लेक्चर जाएगा उतना कंप्लीट नहीं होगा जल्दी से. कोरे सोरे आरे. Perfect. So in the second chapter we had learned about कोरे सोरे आरे and कोनो सोनो आनो. तो कोरे सोरे आरे नाउन जैसा यूज होता है कि कोनो सोनो आनो नाउन जैसा यूज होता है. Ore sore are. Perfect. So kore sore are are treated as nouns, whereas kono sono ano are not treated as nouns, and they generally preside before a noun. Okay. मतलब कोरे सोरे आने नाउन नाउन को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है. ओके. तो कोरे सोरे आरे नाउन जैसे यूज होता है और कोनो सोनो आनो के बाद में नाउन आता है. ओके. तो ये था इसका मेन डिफरेंस. ओके. सो सेकेंड चैप्टर तो पूरा वो ही था. So now we'll move on to the third chapter. Okay, third chapter is similar to the second chapter. Okay, so Daisanka bunke ichi koko wa shukudo desu. Koko wa shokudo desu. अभी देखो इधर न्यू वर्ड आया है कोको. सो लाइक अर्लियर मैंने आपको एक बार मतलब लास्ट क्लास में इसका थोड़ा सा जिस्ट बताया था. ओके. सो कोको इज लाइक कोरे. ओके. But coco is used for place. So abhi the thing which you are going to learn today is coco soko up. So coco soko and asoko. Okay, coco soko and asoko. So coco matlab this. Okay, this. 1 minute. Then soko is that this place. This place. Back unit. This place and that place over there. Okay. Just tell me, कोरे सोरे आरे का मतलब क्या था? Kore is this, Hmm. sore is that, and are is that or there. हाँ. Correct. So kore is this. Like koreva, koreva pensilu this. This is a pencil. Soreva pensilu this. That is a pencil. Okay. और दूसरा क्या था आरे. आरेवा पेंसिल दिस. वही होता है. ओके. सो दिस प्लेस का मतलब उससे अच्छा. ओके इससे आपको कंफ्यूज हो जाएगा. ओके. सो जस्ट सी द सिमिलैरिटी. ये सिर्फ सिमिलैरिटी देखने के लिए. ओके. आप ऐसे याद रखो. तो हियर then Soko is there and that over there. ये इसका कुछ ओके. सो सिर्फ आप ये देखो क्या बोलते हैं सिमिलैरिटीज देखो. सो कोरे वाज फॉर द प्लेस विच इज वेरी नियर टू द स्पीकर. मतलब मेरे पास है तो मैं कोरे बोल रहा था. करेक्ट. प्लेस नहीं सॉरी अ थिंग विच इज नियर टू द स्पीकर उसके लिए कोरे बोल रहा था. तो सिमिलरली कोको इज यूज्ड फॉर अ प्लेस विच इज नियर टू द स्पीकर. कोको कब यूज करते हैं जब वो स्पीकर में अभी समझो मैं बोल रहा हूँ तो अगर मेरे पास वो ये है जगह है तो मैं कोको यूज करूंगा. ओके. देन ओके I'll just open paint because that would be easier to understand. 1 minute. Paint. Yeah, just wait. Okay. So coco is used for showing here. मतलब अगर स्पीकर के पास वो जगह है तो वो बोलेगा कोको. अगर लिसनर के पास मतलब जो सुन रहा है उसके पास वो जगह है तो बोलेंगे सुको. और अगर स्पीकर और लिसनर से दोनों भी दूर है तो होंगे आसुको. फिर सिमिलर लाइक कोरे सोरे आरे. सिर्फ कोको सोको आसोको इज यूज्ड फॉर प्लेसेस.
Okay, that's the only difference. 1 minute. इसका fine. So for let's say this is a speaker. Okay. So this is the speaker. Okay, ये समझो स्पीकर है और ये एक जगह बोल रहा है जो उसके खुद के पास है. लेट्स से दिस इज द 1 minute. This is the place he is saying. ओके, तो अगर अब ये स्पीकर है तो स्पीकर बोल रहा है तो वो उसके पास है तो बोलेगा कोको. ओके, कोको. Speaker. Okay, and suppose this is the listener. He's far away. Okay, not that far but a little far away. और अभी ये उसके पास है, स्पीकर लिसनर के पास है, तो ये बंदा स्पीकर इसको सोको बोलेगा. सॉरी. ओके, अभी समझो कि द प्लेस इज फार फ्रॉम बोथ ऑफ देम. तो फिर तभी आसो को यूज होता है. गॉट इट. तो इसको आसो को यूज होगा. गॉट इट. इज इट क्लियर? इज दिस मच क्लियर कि कोको सोको आसोका का डिफरेंस क्या है? अगर आपको कोरे सोरे आ रहा रहेगा तो कोको सोको आसोको में कुछ ये नहीं है, डाउट आना चाहिए. श्लोक, इज इट क्लियर? भावेश, इज इट क्लियर? निधि, आई गेस लेफ्ट. अदर्स प्लीज रिप्लाई. ओनली हेमा हैज रिप्लाइड. बाकी लोग को समझ नहीं आया तो डाउट्स रहेगा तो पूछो. इट्स अ न्यू लैंग्वेज, यू शुड हैव डाउट्स. भावेश अंडरस्टूड इट. नाइस. बट भावेश नेवर आंसर्स. श्लोक, व्हाट अबाउट यू? Okay, you also got it. Fine. Okay, so now we'll move on to the sentences. Bunke, कोको वा शोकुदो देस. तो अभी लिखो शोकुदो का मीनिंग. Okay. So, कोको वा शोकुदो देस. So shokudo is like cafeteria, okay, dining room kind of. So we'll just write it dining room. It's अगर ऑफिस में शोकुदो यूज हो रहा है तो कैफेटेरिया जैसा रहता है, नॉट डाइनिंग रूम. मतलब अगर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट ऑफिस का है तो फिर शोकुदो बिकम्स कैफेटेरिया और कैंटीन. अगर वो इसका है, अगर घर की बात कर रहे हैं तो फिर वो डाइनिंग रूम का है. ओके, सो एरेबेता वा आसोको दिस. ओके ओके, ये तो ओके. फर्स्ट सेंटेंस समझा. कोको वा डाइनिंग रूम, सॉरी शोकुदो दिस. कोको वा शोकुदो दिस. सो कोको इज हियर, करेक्ट. सो हियर इज द डाइनिंग रूम, ऐसा वो बोल रहे हैं. हियर इज द डाइनिंग रूम. सो इसका मीनिंग है हियर इज द डाइनिंग रूम. गॉट इट. ओके. एरा बेटा वा आसुको दिस. तो इधर क्या बोल रहा है, एलिवेटर इज दैट ओवर देयर. तो वो दूर है जरा सा. ओके, सो इन दिस ही इज सेइंग दैट एलिवेटर is over there. Okay, in simple English. Got it? Okay, so ये तो सिंपल था. अभी पहले ये पढ़ने से पहले we'll do grammar. Okay, so the first pattern which you are going to learn is cocoa. Sorry, cocoa noun this. Okay, but cocoa noun this. So अभी ये noun क्या रहना चाहिए? कोको आ रहा है तो द नाउन शुड बी व्हाट? नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग,
व्हाट शुड इट बी? कोको आ रहा है मतलब नाउन कैसा होना चाहिए? What should it represent? Place. Perfect. Okay, so I'll just write it here in bracket. Place. Okay. So this is your first pattern. So see the first sentence. Coco wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu का किसको meaning पता है? Does anyone remember the meaning of kyoshitsu? Kyoshitsu किसको नहीं याद? Okay, lift. So this is classroom. Kyoshitsu means classroom. Okay, just so now translate it for me. Translate करो मेरे लिए. इस sentence का meaning क्या होगा? कोको वा क्योशित्सु देsu. कोको वा क्योशित्सु देsu. Here is the classroom. Sorry. Okay. So here is the classroom. Perfect. Then कोको वा दाइगाकू देsu. दाइगाकू का मीनिंग अभी सबको आना चाहिए. ये बहुत बहुत बार यूज किया है मैंने. दाइगाकू मतलब किसको पता है? Okay, University. someone new. Perfect. University. Okay. Hema, I guess it was you, right? Yes, sir. Yeah. Translate it for me. कोको वा दाइगाकू देsu. Here is the university. Perfect. कोको वा हिरोशिमा देsu. Next. हिरोशिमा क्या है पता है किसको? It's a what? Jap- हाँ, continue. Japanese city. Perfect. So Hiroshima is the Japanese city, Japanese a very city. famous city indeed, क्योंकि वहाँ पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था. Okay. So कोको वा हिरोशिमा देsu. Meaning, translation, anyone? हिरोशिमा सिटी इधर है. हाँ, In Hindi. ये हिरोशिमा ये सिटी है. है. Here is Hiroshima. Okay. Next. Okay, so this was your first pattern. Now see the second pattern. So the second pattern is noun wa कोको देsu. So ये फर्स्ट पैटर्न से ही सिमिलर है. तो ये लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चल. Okay. So it is very similar to the first pattern, सिर्फ places उल्टा किया है. Okay. तो अभी देखो, इन हिंदी हम लोग ऐसे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासरूम है, क्लासरूम ये है, ऐसे बोलते हैं ना इन इंग्लिश. Sorry, in Hindi. Even in English, we say here is the classroom. Classroom is here, right? So we interchange the word sometimes. Similarly, in Japanese they do so. तो उसका वही है. So for example, take the example. Uketsuke wa koko desu. So uketsuke is reception. Okay, reception. होटल का रिसेप्शन रहता है ना वैसे. कि uketsuke is reception. So uketsuke wa koko desu. Reception is here. Got it? Then uketsuke wa soko desu. Reception is there. Uketsuke wa asoko desu. Reception is over there. Okay. And then the last is doku desu ka. Uketsuke wa doku desu ka. So everyone please write doku desu ka is the question word for the place. Where जैसा है. Okay. Doko is like where. Everyone write. Okay. Where is the asterisk? Doko equals where. Okay. So अभी uketsuke wa doku desu ka का मीनिंग क्या होगा? Where is the reception? Got it? सबको ये सेकेंड पैटर्न समझा? इसमें सिर्फ एक ही नया वर्ड था, वो था दुख. Did everyone understand? Yes sir. Am I going a little fast? इससे स्लो होना है तो बताओ मुझे. Is this pace fine कि इससे स्लो होना है?
प्लीज ग्लो स्लो. ओके फाइन. अब तक तो सब कुछ समझा ना हेमा? अब तक का सब कुछ समझा? यस Yes, फाइन. sir. ओके. या ओके. सो द थर्ड वन. अभी ये है वो आपको पढ़ना है क्योंकि ये टाइप ऑफ बड़ा वर्ड है, मुझे पढ़ने आता है, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू ट्राई एंड रीड इट. ओके. हेमा कैन यू ट्राई? द थर्ड का पहला वाला वर्ड है. ट्राई रीडिंग इट वर्ड बाय वर्ड और फिर एक साथ पढ़ो क्योंकि बड़ा वर्ड है करके. जीदो हम्म. नान नान है क्या? जिदो तक बराबर है. इसके जीदो बाद का क्या है? जीदोहान हम्म. जीदोहान बी बी नहीं है. okay that is full stop no sir that is P or B I can't say फुल स्टॉप नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है. बा सिर्फ ये वाला पार्टिकल है वो अलग है. आई कवर दैट फॉर. ये है ना, ये सिर्फ अलग है पर ये पूरा एक वर्ड है तो वो पूरा एक वर्ड पढ़ो. नाही तिथे apostrophe एस आहे की हे अपोस्ट्रॉफी आहे राऊंड का? आहे ते तो टेन आहे तो. अपोस्ट्रॉफी जीदोहान नसतो जॅपनीज मध्ये. जिदोहान. अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई. ओके. मतलब मैंने सिर्फ हेमा को बोला, मतलब इट्स नॉट लाइक ओनली शी हैज टू ट्राई. बाकी सब लोग भी चाहिए तो चैट पे आंसर दे सकते हैं. जीदोहान हम्म. बाई वाह हम्म. वाह जीदोहान बाई वाह 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 नहीं है. बाई के बाद और एक ठीक है लेटर है बाई डायरेक्ट वहां पे. की ये क्या है? की. हाँ. की नाउ रीड इट फास्ट. जीदोहान बाई हाँ. की वाह करेक्ट. जिदो हामबाइकी. Okay, जिदो हानबाइकी. So जिदो हामबाइकी is vending machine, and as you know, Japan is very famous for its vending machines. Okay, तो जापान हैज एवरी काइंड ऑफ वेंडिंग मशीन. कौन सा भी वेंडिंग मशीन चाहिए वो आपको जापान में मिलेगा. देयर इज इवन अ वेंडिंग मशीन फॉर क्लोथ्स. सो जापान, sorry, so जिदो हामबाइकी is vending machine. So instead of this noun wa koko this, you can write noun wa place this too. Okay, मतलब वो कहाँ पर है वो भी लिख सकते हो. Okay, so second or third is similar. So now I'll just read the sentence, then I'll explain it. Okay. Jido hanbaiki wa nikai desu. Jido hanbaiki wa nikai desu. So see, ये काई है ना काई. This is a counter for floor. Okay, this is used for counter for floor. मैंने आपको ये लास्ट टाइम शायद से बताया था, राइट? कि हर एक चीज का अलग काउंटर रहता है. काउंटिंग करने का एक अलग तरीका रहता है जापानीज में, विच इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट जापानीज. क्योंकि हर एक चीज का अगर वो काउंटिंग सिस्टम याद रखा ना तो बहुत वो कंफ्यूजन होता है. अब मुझे भी होता है क्योंकि ओके. तो फॉर मी दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, क्योंकि सब अलग, हर एक चीज का अलग अलग रहता है. थिन ऑब्जेक्ट का काउंटिंग करने का सिस्टम अलग रहता है. थिक ऑब्जेक्ट का काउंटिंग करने का सिस्टम अलग रहता है. बुक का काउंटिंग सिस्टम अलग रहता है. बुक का काउंट करने का, मशीन्स का काउंट करने का सिस्टम अलग रहता है. देन फ्लोर का काउंट करने का सिस्टम अलग रहता है. ओके. बट फ्लोर का काउंट करने का सिस्टम मोस्टली हर एक इसका एक सफिक्स रहता है, फिक्स्ड सफिक्स. लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन हियर फॉर फ्लो. सो काई सफिक्स इज यूज्ड फॉर द काउंटर ऑफ फ्लो. ओके, द काउंटर फॉर फ्लो. सो इक्काई निक्काई सांकाई ऐसा काउंटर है. Similarly,
टेक एन एग्जांपल ऑफ बुक, तो बुक को कैसे काउंट करते हैं? सो बुक का सफिक्स है, बुक के काउंटिंग का सफिक्स है होन, होन विच इज एक्चुअली बुक इज अ सफिक्स फॉर काउंटिंग बुक्स। ओके, सो उसका है इप्पोन, निप्पोन, निप्पोन नहीं सॉरी निहोन है, और फिर सानहोन है, ऐसा कुछ। ओके, सी मुझे अभी भी कंफ्यूज होता है उसमें, काउंटिंग बुक्स राइट, इप्पोन है। ओके नहीं नहीं आई एम सॉरी सॉरी, इप्पोन निप्पोन अलग इसका। तो for book it is issatsu, nisatsu, sansatsu. So here the suffix is satsu. Ippon is I guess for long things. Yes. Ippon, nihon and sambon is for long things. So hon वाला है वो long things के लिए यूज होता है, जिसकी bottles वगैरह। Okay. Was not wrong. ठीक है। Okay. Fine. So ऐसा हर एक इसका अलग अलग काउंटिंग सिस्टम रहता है जैपनीज में, which you are going to learn. So अभी देखो इधर और एक काउंटिंग है। So the homework for you, which I know you are not going to do because you never do, but still I'll give you because it's my duty. So first is normal counting. Normal counting कैसे करने का, वो आपको पूरा रट्टा मारना है। नॉर्मल काउंटिंग सबको याद रहना चाहिए। okay? So नॉर्मल काउंटिंग बताओ कैसे है? इची नीची नहीं है, वो नंबर से मैं काउंटिंग पूछ रहा हूँ, इची नीची नहीं। नॉर्मल काउंटिंग। ओके, सो नाउ is anyone replying? I thought so. Okay. This is new for you, so I don't expect you to answer. But normal counting ये वाला था, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, तो ये था normal counting. Okay. uh, 1 minute. मैंने आपको ये कांजी का हो गया ना पूरा कंप्लीट? मैंने कितने कांजी तक सिखाया आपको? बेसिक मैंने सिखाया था, मुझे उतने याद है, पर आई डोंट रिमेम्बर कितना कांजी। कैन एनीवन जस्ट टेल चेक एंड टेल मी कि मैंने कितना कांजी सिखाया था? वन मिनट। ये काउंटिंग वाला कांजी हो गया था। तो डेज का कांजी हो गया, काउंटिंग वाला कांजी हो गया। येन तक सिखाया था क्या? दिस इज द लास्ट वन। ओके, रिप्लाई मी एट लीस्ट इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट। ये लास्ट था क्या कांजी में? कांजी लिखा है नहीं, लिखा है कि नहीं किसने? तो 7th पर्यंत झाली तू सर त्याची कुठपर्यंत? 7th 7th म्हणजे नंबर काउंटिंग इथपर्यंत? नानाच अर्धी नाही सोडणार मी, फक्त इथपर्यंत झालेलं. इथून नंतर यॉन लास्ट कांजी कुठची ते फक्त मला सांग. येनची कांजी आहे का? बिकॉज आय थिंक आय हॅव यॉन डन दिस. यॉन, यॉन आहे लास्ट कांजी. इथपर्यंत झालंय. Okay, leave it. I'll just see in the lecture. Sorry, in the recordings. Okay. So मैं ये इसलिए सर्च कर रहा था क्योंकि वो कांजी में फिर आपको फिर ये याद करने में इजी होता था. Okay. So the for किधर गया वो? Homework for you is normal counting, which is hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu और तो ये सब याद कर. Okay. Okay. 1 minute. Okay. Then the second counting, which you are going to learn. 1 minute.
Okay, the second counting which I'm going to learn is of people, which is Hitori, Futari, Sannin, Yonin. Okay, Hitori, so counting of people, counting of people or persons. Okay, so इसमें okay, I'll just write it here. इसमें suffix क्या है? The suffix which is being used here is nin. Okay, सिर्फ स्टार्टिंग के दो एक्सेप्शन है, हितोरी और फुतारी, बाकी सब में नंबर एंड देन सफिक्स में निन. So hitori, futari, sannin, yonin, gonin, rokunin, shichinin, hachinin, kyunin, junin. Okay. The other exception here is yonin. उसमें yonin नहीं रहता है, yonin रहता है. Okay. बाकी का सब सेम है. Then the next counter which you are going to learn is of floors. Okay. Counting of floor. क्योंकि ये इस लेसन में यूज होगा. Counting of floor. तो इसका सफिक्स है काई. ओके, तो इसका एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको. इक्काई, देन निकाई, सांगाई, गाई है सान गाई, देन योंकाई, गोकाई, रोक्काई डबल के, देन नानाकाई, हक्काई अगेन डबल के, देन क्यूकाई, जूकाई और जिक्काई. ओके, सो ये है काई. फिर और एक जो आपको याद रखना है इज काउंटिंग ऑफ आवर्स. काउंटिंग ऑफ आवर्स. तो 1 मिनट. काउंटिंग ऑफ आवर्स. सो इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो है जी. सो इच्चिजी, नीजी, सांजी, योजी, गोजी, रोकुजी, शिचिजी, हचिजी, क्यूजी, जूजी, ऐसा. ओके, ये आपको क्या बोलते हैं, क्लॉक को पढ़ने में यूज होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहले ही हो गया है, मैं तभी भी आपको वापस बताता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल आपको बोलना है 5:30 बजा है, तो आप बोलोगे गोजी सांजुपुत 5:30. Okay, 5 hours 30 minutes. So the next which is you're going to learn is counting of minutes. उसका है फुन और पुन. जहाँ पे 0 एंड होता है 0 से, वहाँ पे ये आता है, क्या बोलते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, ऐसा नहीं है सर सर सर, इसका ये पुन ही है शायद. सो फुन और पुन लिख लो क्योंकि यही दो रहता है. Okay, so for example 1 minute is ipun, then ni fun, sampun, yompun, gofun, ruppun, shichifun, happun, kyufun and jupun. Okay, then jugofun, sanjupun, ऐसा. Okay, so ये 5 काउंटर्स आपको याद करना है. This is important for some of the next lectures. Okay, इस लेक्चर में काउंटिंग ऑफ फ्लोर्स आएगा. So moving on. जुदो हाम बाई के बाद निकाय देस. तो जुदो हाम बाई के बाद निकाय देस का मतलब है द वेंडिंग मशीन इज ऑन द सेकंड फ्लोर. वेंडिंग मशीन सेकंड फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर में है. ओके, सो इधर ये प्लेस बता रहा है ना, वही है. ओके, सो सेम लाइक दिस, द सेकंड बटन नाउन वा कोको प्लेस दिस. ओके, वेंडिंग मशीन इज ऑन द सेकंड फ्लोर. देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल. जुदो हाम बाई के बाद रोबी दिस. Robi this. So Robi is lobby. Okay. So now can anyone translate it for me? Jido ham bai kiwa Robi this. उसका मीनिंग क्या हो गया? Vending machine is on second floor. नहीं नहीं, लॉबी बोला है ना अभी मैंने. रोबी अच्छा दिस. हाँ. हाँ, तो कंटिन्यू. Vending machine is on second lobby. सेकंड क्यों आया? अभी मैंने नी बोला ही नहीं ना, सिर्फ लॉबी बोला. Is in the lobby. Correct. Is in the lobby. Vending machine is in the lobby. Now see the next. Sato sanwa jimusho this. Sato sanwa jimusho this.
तो जिमुशो मतलब ऑफिस, हाँ, जिमुशो मतलब ऑफिस। सो अभी नाउ टेल मी, इसका मीनिंग क्या रहेगा? सत्तो सानवा जुमुशो देस का मीनिंग क्या होगा? Sato-san is in the office. ऑफिस में है। करेक्ट, हाँ, सो सत्तो ऑफिस में है। सत्तो सानवा शोकुदो देस। सत्तो सानवा शोकुदो देस का मतलब क्या होगा? शोकुदो ऊपर हो गया। Sato-san is in the cafeteria. करेक्ट, सत्तो सानवा इज इन द कैपिटल। सो नाउ इफ यू वांट टू से वेयर इज सत्तो सान, तो आप कैसे बोलोगे? सत्तो सानवा। Doko desu ka? परफेक्ट, ओके। सो द नेक्स्ट नाउ द फोर्थ, ओके। एरे बेटावा कोचिरा जिसका, ओके। सो द न्यू थिंग हियर इज कोचिरा सोचिरा अचिरा। तो देखो, जापान जापानीज पीपल लव टू बी पोलाइट, ओके। तो वो इतना पोलाइट होता है कि वो लोग हर एक वर्ड के लिए और एक पोलाइट वर्ड ढूंढ के निकलते हैं। सो कोचिरा सोचिरा अचिरा है पोलाइट वर्जन ऑफ कोको सोको आसोको, ओके। सो कोको के जगह पे अगर आपने कोचिरा यूज किया तो ज्यादा पोलाइट लगता है। सो कोको जगह पे आपने सोचिरा यूज किया तो वो ज्यादा पोलाइट लगता है। आसोको के जगह पे अचिरा यूज किया, सो दैट्स मोर पोलाइट, ओके। सो कोचिरा सोचिरा अचिरा is the more polite version of Koko Soko Asoko. Similarly, Toko का more polite version is Dochira. Okay, so I'll just write here. उसका सब बाद में ग्रामर का सब सेम रहता है। So कोचिरा, कोचिरा, सोचिरा, अचिरा and दोचिरा are the more polite versions of Koko, Soko and Asoko. Got it? And Doko also. Got it? So ये है। So अभी इधर दिखा है, अरे बेटा वा कोचिरा दिस, elevator is here. अरे बेटा वा सोचिरा दिस, elevator is there. अरे बेटा वा अचिरा दिस, elevator is over there. अरे बेटा वा दोचिरा दिस का, where is the elevator? Okay. So ये था कोचिरा सोचिरा अचिरा। सबको समझा? Is this clear? Please reply yes. Okay. तो pretty simple chapter, जल्दी से हो जाएगा। Okay. So the next pattern. कुनीवा फ्रांसु दिस। ओके, तो ये एक्चुअली नॉर्मल सेंटेंस का ही है, इसमें एक्चुअली कुछ पढ़ाने का ये नहीं है। तो नाउन वा नाउन जैसा, नाउन वा नाउन दिस जैसे ही है ये, ओके। तो कुनीवा फ्रांसु दिस मतलब कंट्री फ्रेंच है, मतलब मैं, यू कैन से इट लाइक आई एम फ्रॉम फ्रांस, तो उसने इस तरीके में बताया कुनीवा फ्रांसु दिस, वाताशिवा यूज नहीं किया। सी इन जापानीज मोस्टली दे डोंट यूज वाताशिवा एंड अनाता। आपको मतलब हमेशा सब्जेक्ट मिसिंग रह सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, ओके। आई एम सॉरी। तो कोनिवा फ्रांस दिस मतलब माय कंट्री इज फ्रेंच, नॉट फ्रेंच, माय कंट्री इज फ्रांस। काइशावा आईएमसी दिस, माय कंट्री इज, सॉरी, माय कंपनी इज आईएमसी, ओके। काइशावा आईएमसी। दाइगाकु वा साकुरा दाइगोकुरु दिस, यूनिवर्सिटी इज साकुरा दाइगाकु यूनिवर्सिटी, ओके। देन दाइगाकु वा दूसरा दिस, ओके। सो ऐसा ही है। 1 minute, I'll just make sure कि what I'm saying is correct.
Just wait a minute. Sorry. वही है, but just to make sure. वही ओके। सो अभी सॉरी, आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, राइट? सॉरी क्या? या आई एम एक्सचेंजिंग सॉरी। या सॉरी ओके। तो ये जो मैंने बोला था वही है। सो अभी देखो, अभी ये है ना दो चिरा। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. या ओके फाइन। सो ये वो क्वेश्चन है ना लास्ट, इधर का, हाँ ये वाला। सो ओ कुनिवा दोचिरा देश का मतलब विच इज योर कंट्री, वेर इज योर कंट्री। दाय ओ दायगाकुवा दोचिरा देश का मतलब होता है विच इज योर यूनिवर्सिटी, ऐसा ही रहता है। ओके, सो एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा है, बट स्टिल ओके। दिस इज योर फिफ्थ पैटर्न। ये मोस्टली आपको समझेगा नहीं, समझना चाहिए पर आपको समझेगा नहीं। ओके, क्योंकि इफ यू गो लिटरली तो वो क्या लिखा है, कुनीवा फ्रांसुदेस मतलब कंट्री इज फ्रांस, ऐसा। कंट्री फ्रांस है वो पता है, बट अभी किसकी कंट्री, तो मोस्टली मेरी कंट्री के बारे में बोल रहे हैं। सिमिलरली काइशावा आईएमसी देस, तो मेरी कंपनी आईएमसी है। दाइगाकू वा साकुरा दाइगाकू देस, मेरी यूनिवर्सिटी साकुरा दाइगाकू यूनिवर्सिटी है, साकुरा यूनिवर्सिटी है, सॉरी। ओके, सो कुनीवा दोचिरा देस का, वेर इज योर कंट्री, विच इज योर कंट्री। दाइगाकू वा दोचिरा देस का, विच इज योर यूनिवर्सिटी, वेर इज योर यूनिवर्सिटी, ऐसा इसका मीनिंग है। सो दोचिरा कैन बी यूज्ड एज विच इज एंड वेर इज। ओके फाइन, समझा? डू आई नीड टू रिपीट? इज दिस क्लियर? नो सर, ओके फाइन। आपको क्या नहीं समझा? ट्रांसलेशन नहीं समझा? नहीं समझ, नो डाउट। समझ लो, ओके ओके, नो डाउट्स, फाइन फाइन। आई थॉट इट नॉट। ओके, दीपिका आर यू न्यू? So the sixth sentence pattern now. Yes, okay, okay, fine. Do you know Japanese? आपको पता है, आपने lectures देखे हैं? Yeah. So okay, you don't know Japanese, fine. So you have to see the lectures before coming in the class. क्योंकि फिर आपको समझेगा. Okay. Sixth is कोरेवा निहोन नो कुरुमा desu. So ये last time हुआ है कि नहीं? ये same sentence pattern last time हुआ है कि नहीं? मैं बराबर से चैप्टर पे हूँ ना? हाँ, ये last time हो गया. So कोरेवा निहोन नो कुरुमा desu. तो इसका क्या मीनिंग होगा? Can anyone translate it for me? कोरेवा निहोन नो कुरुमा desu. बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ. This is the book of Japanese, or this is the Japanese book. नहीं 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 नहीं. ओके, वन मिनट. कोरेवा मतलब क्या हो गया? दिस इज राइट. This is, हाँ, निहोन नो मतलब Japanese, Japanese का, जापानीज नहीं, जापानीज का. हाँ, कुरुमा मतलब कार, ओ, हम्म, तो दिस पूरा करो अभी.
बुक का सा क्या, दिस इज जापानीज बुक कैसे, बुक का कुछ यही नहीं है, वर्ड ही नहीं है, होन कहाँ पे है ही नहीं, निहोन है, निहोन मतलब जापान। This is a Japanese car. करेक्ट, दिस इज अ जापानीज कार, दिस कार इज फ्रॉम जापान, ये जापान का कार है। परफेक्ट। ओके, सो दिस सेंटेंस पैटर्न टेल्स अस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट थिंग इज मेड फ्रॉम। ओके, ये मतलब एक्चुअली ये अलग सेंटेंस पैटर्न देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हो गया, सॉरी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हो गया, नहीं फर्स्ट लेक्चर में हो गया ना, नो पार्टिकल का यूज फर्स्ट सेकंड लेक्चर, सॉरी फर्स्ट लेसन में ही हो गया है। सो वही है, नो का ही यूज है ये, और कुछ नहीं। सो सी कोरेवा निहोन नो कुरुमा दिस, दिस इज अ जापानीज कार। कोरेवा अमेरिकानो कुरुमा दिस, दिस इज अ अमेरिकन कार। कोरेवा दो इत्सु नो कुरुमा दिस इज अ जर्मन कार। अभी देखो, अभी आपको पूछना है कि ये कहाँ का गाड़ी है, ये कहाँ का वाइन है, वाइन इज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, राइट, चीज इज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो हाउ विल यू आस्क, सो यू आस्क कोरेवा दोको नो something something this. If I am asking about wine, then I'll say korema doko no waino this ka. Okay, so doko is used for the question of a place. Okay, I have written it here, I'll just continue here. Okay, question word for place. Okay, so it's a question word for place. So अभी आपको पूछा, for example, suppose you have an American car. Okay, और आपको पूछा किसने, कोरेवा दोको नो कुरुमा देस का, तो आप बोलोगे कोरेवा अमेरिका नो कुरुमा देस। दोको नो कुरुमा देस का कोरेवा दोको नो कुरुमा देस का मतलब है ये कहाँ की गाड़ी है, किस कहाँ से बनी बनकर आई है ये। ओके, इट इज मेड फ्रॉम वेयर, इट इज फ्रॉम विच कंट्री, ऐसा उसका मतलब है। गॉट इट, कुछ ये अलग नहीं है, इस पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक एक वर्ड पता है तो यू कैन ट्रांसलेट इट इजीली। Is it clear? Just tell me. Yes, sir. Okay, fine. So the last grammar pattern here tells us how to count money. Okay. So kono nekutai wa sen go yaku en desu. Okay. Kono nekutai wa sen go yaku en desu. So kono मतलब क्या है, this necktie तो समझे। So ये necktie 1500 yen की है। सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है इसमें, सिंपल फॉर्मेशन है ना, डैशवा डैशवा डैश जैसी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है कि ये पेंसिल 10 रुपए की है, तो आप कैसे बोलोगे, रुपए, हाँ, नॉट येन, रुपए की है तो आप कैसे बोलोगे, दिस पेंसिल इज ऑफ 10 रुपीज, तो आप कैसे बोलोगे, एनीवन, सॉरी, कैन एनीवन ट्राई, हेमा कैन यू ट्राई। Kono impetsu wa हम्म, 10 को क्या ju बोलते हैं, ju तो जू रुपीज 10, बस ju इतना ही। ju privilege. अभी एक्चुअली रुपीज को वो लोग एक्सेंट लगाएगा, बट वो रहने दो। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कोनो नेकुताई वा गोसेन गोसेन हप्याकु एंडस। ओके, सो इधर आपको कैसे पढ़ना है ना, उस पे ये, सो आई गेस काउंटिंग मनी भी आपको इधर रहेगा, वो ऐप मैंने दिया है उसमें, काउंटिंग मनी नहीं है। ओके, सो आई टेल यू हाउ टू काउंट मनी। ओके, काउंटिंग मनी नहीं है पर काउंटिंग नंबर्स, 1 मिनट, हाँ है। सो नंबर्स को जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलना है,
काउंटिंग मनी भी सेम, सिर्फ इधर सफिक्स है n विच इज येन. सो काउंटिंग सबको आता है ना, नंबर काउंटिंग इचिनी सान योन वैसे. ओके, सिर्फ इधर ह्याकू का इसमें जरा सा हो. सो इन ह्याकू 100 is ह्याकू, देन इट इज नी ह्याकू 200, देन 300 is सान ब्याकू, इधर ब का आता है ब्याकू. देन अगेन 4 is योन ह्याकू गो ह्याकू, देन रो प्याकू, इधर पी आता है. देन नाना ह्याकू एंड देन अगेन हाप प्याकू एंड देन क्यू ह्याकू. ओके, तो सेन केस में भी ऐसा है, एक एक्सेप्शन है विच इज ऑफ द 3000. ओके, तो 3000 को बोलते हैं सान जेन, नॉट सान सेन. ओके, सेन नी सेन सान जेन, योन सेन गो सेन रोकू सेन नाना सेन हस सेन, इधर डबल एस आएगा, देन क्यू सेन. ओके, so I'll just write it here. I'll give you numbers, you have to count it for me. Okay, anyone, अगर मिस्टेक हुआ तो चलेगा, no problem. ते कुठे बघायला मिळते सर काउंटिंग? त्या ऍप मध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं ना लास्ट टाइम, ऍप मधून कसं काय काय काढायचं, की परत दाखवू? दाखवा. तसे आता लेक्चर म्हणजे संपायलाच आलंय, मी लास्ट मध्ये दाखवतो तुम्हाला. ओके, सो नाउ ट्राई दिस 1100. इसको आप कैसे बोलोगे जापानीज में? 1100. इची सेन इची याको. हाँ, इची सेन नहीं आएगा. देखो, जब वन के बारे में बोल रहे हैं ना, दोनों इसमें वन रहेगा, तो दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है. तो सेन ह्याकू इतना ही, सेन ह्याकू. नाउ ट्राई दिस 2300. 2300. नी सेन सान याको. Okay, I was waiting for this. So see, in 100 there is exception for 300, क्योंकि 300 में फिर ब का आवाज आता है. So नी सेन सान ब्याकू, सान ब्याकू, not ह्याकू, ब्याकू. Okay, I don't know why they do this, but they do it. Okay, so ni sen san byaku. Similarly, now try this. 100. One ये हो गया ना. Now try 8800. 8800. 8800. इची सेन याको. वापस वापस. इची सेन याको. हाँ, तो सिमिलरली अभी हाथी सेन आपको शुड बी करेक्ट, बट नहीं है, क्योंकि जापानीज लोग को क्या हुआ क्या पता. तो 8000 को हसन बोलते हैं लोग, हसन, डबल एस. ओके, हसन, हसन. और 800 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हप्प्याकू. सो हसन हप्प्याकू. सो just note it here, I'll just write it. In 100 exceptions are exceptions are 300. 300 is the exception, then 800. 800 के पहले 600 भी है, and then 800. Okay, so in 100 का सीरीज ये 3 एक्सेप्शन है. तो 300 को बोलते हैं सान ब्याकू, साम ब्याकू. 600 को बोलते हैं रोप प्याकू, डबल पी. हाँ, रोप प्याकू, ROPPYAKU, रोप प्याकू. 800 को बोलते हैं हप प्याकू. ओके, बाकी सब है, मतलब 200, 100, 200, 400, 700,
बाकी सब इन तीनों को छोड़ के है, उसके आगे हमेशा याकू लगेगा, नंबर एंड देन याकू. ओके, सो नाउ सी द एक्सेप्शन इन द 1000 केस. ओके, सो 1000, 1 मिनट, सॉरी, 1000 में कहाँ कहाँ अलग है? 1000 में अलग है अगेन 3000 पे. 3000 में अलग है, देन बाद में अलग है डायरेक्ट 8000 पे. ओके, सो इधर इसको वापस 10 लगता है. ओके, सो सी, इधर 10 लगा, इधर मारू और मारू, ये 0 लग रहा है, ये 0 नहीं लग रहा. सो इधर मारू है, जस्ट राइट डॉट हियर, इधर मारू लगा और इधर भी मारू लगा. सो इधर भी वापस सेन के इधर एक ये लगेगा 10, तो हो जाता है सान जेन. अगर आपको याद रखना तो ऐसे रख सकता, मैं वैसे याद रखा था करके. और इधर वापस 10 लगेगा. ओके, 10 नहीं, इधर एक्चुअली स्मॉल सो है, तो हो जाएगा हसन, हसन, डबल एस. ओके, सो अगर आपको एक्चुअली ये याद रखने वो मेरा ट्रिक है, सो आप शायद से वो याद नहीं रहेगा वैसे, तो आप ऐसे याद रखो, साम्ब्याकू, रोप्याकू, हप्याकू, then Sanzen and Hassan. Okay. Okay. So now can you tell me कैसे काउंट करेंगे हम लोग? Okay, I'll just extend the lecture for a bit. Okay. क्योंकि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है. Now हसन tell me. म्हणजे 300 की 3000? Hassan सेन आलं म्हणजे 1000. 1000. ओके. याकूचं काय त्याला पण रायमिंग आलं म्हणजे 100. मग अभी 3000 नाव ला हे लागेल का? 3000 ला बोलणार सानझेन. सांजे. हा, ओके. त्याला हे लागतं 10 लागतं. अच्छा, ते सेनलाच फक्त 10 लागतं. हा. Okay, now Hema, as you have unmuted, can you try this? 8900. हसन Hassan बराबर. चूहकू. Perfect. Hassan Kyohaku. Shlok. Yeah. Shlok. Unmute yourself and tell me how to read. Let's say 3600. 3600. थ्री थाउजेंड को क्या बोलते हैं? सानजेन. बाकी का बोलो. Sanzen, Sanzen, Roku, Yaku. याकू नहीं, अभी इधर पे आपको मैंने एक्सेप्शन बताया था ना. 600, 300, 600, 800 आता है एक्सेप्शन. 300 का होता है साम्ब्याकू, 600 का होता है रोप्याकू, Roku. 800 का होता है हाप्याकू. ओके. ओके, नाउ टेल मी द एक्सेप्शंस फॉर 1000 का. व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर 1000? श्लोकी ओनली. That if there is 1100, we have to say it is sun. नहीं, वो नहीं, मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था ना, दो. एक था 3000 का एक्सेप्शन और एक कौन सा था? जिधर 8000. सेन नहीं आता. 8000 बराबर. तो 3000 को क्या बोलते हैं? सान जेन. रिपीट. 3000 is Sanzen. Sanzen, And 8000 in Hassen. Hassan, Now tell me 3600 को आप कैसे बोलोगे? Hassan, Roku, Yaku. Hassen आएगा क्या वापस? Sorry. Sanzen, Roku, Yaku. रोकू प्याकू नहीं, रोप प्याकू. रोप प्याकू. रिपीट श्लोक. Yes, sir. Sanzen, रोप प्याकू. Roku, Yaku. ओके, नाउ रिपीट अगेन. 300 को बोलते हैं साम्ब्याकू.
Repeat. Sambyaku. 600 is Ropyaku. Ropyaku. 800 is Hapyaku. Apyaku. परफेक्ट. ओके, सो ये था काउंटिंग सिस्टम. ओके, सो अभी इस लेसन में और एक नंबर आपको और एक जीरो ऐड होता है. ओके, और वो होता है 10,000 का सीरीज. ओके, 10,000 का सीरीज, 10,000. सो इसका प्रीफिक्स है माई. ओके, तो अगर 4 जीरोस आया तो उसका हो जाता है माई. पहले 2 जीरो था तो था यहाँ, 3 जीरो आया तो हो गया सेन सफिक्स. तो अभी इसके लिए है माई. तो अभी ये कैसे पढ़ते हैं? तो इचिमाई, नीमाई, सानमाई वो है. तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. ओके, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. और माई के आगे डायरेक्ट ना बहुत 100 मिलियन पे चेंज होता है. ओके, सो दिस इज योर बेसिक. इधर तक आपको इस लेवल में पढ़ना है. ओके, सो ये लास्ट है. सो इसका कुछ एक्सेप्शन नहीं. सो इचिमाई, नीमाई, साममाई, योनमाई ऐसा ही पढ़ना है. गॉट इट? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Perfect. Hema, is it clear? Fine. Good. Now we have to read what is given in the lesson. किधर गया? हाँ. Read the second sentence. Hema, you. Can you read the second sentence? कोनो Hmm. कोनो टाइप Nekutai. कोवा नेकोटाई वा is not 5,800. 800. हाँ, 5,800 को कैसे बोलोगे? गोजेन गोजेन नहीं, गोसेन नहीं आएगा. गो का गोसेन. एक्सेप्शन, हाँ, 5,000 का एक्सेप्शन नहीं था ना. तो गोसेन हाप्याकू. सॉरी, हाँ, हाप्याकू बराबर. Okay, read the next one too. कोनो इसका सर प्रोनाउंसिएशन टाइकानो नेक किसका? चलन कोनो चलन पर नेकुताई. नेकुताई. नेकोटाई. हाँ, नेकटाई. हाँ, नेकटाई को वो लोग एक्सेंट में बोलते हैं, वो नेकुताई हो गया. नेक्स्ट. हाँ, कोनो नेकुताई कोनो वा. नेकोटाई वा हम्म. सानमाई सानमाई नहीं, पहले इचिमाई ये आएगा. 10,000 प्लस 3,000 है ना. इचिमाई हम्म. सानजेन एंड दिस. एंडस. ओ परफेक्ट. गॉट इट? दिस इज दिस सिंपल. सबको समझाइए. Okay, so I'll read the last one, which is Kono nekutai wa ikura desu ka? So ikura का meaning है how much does it cost. Okay, so ikura is for equals how much cost. What is the price? ऐसा. Okay. So kono nekutai wa ikura desu ka? How much does this necktie cost? ऐसा उसका ये होता है कि कितने का है, कितने का है, वो है वो इकुरा. सबको समझा ये पार्ट? Please tell me, is this clear? Yes. Okay. So don't worry. I know I was a little fast today. We'll revise it in the next chapter, obviously. क्योंकि ये सब मैं वैसे भी रिवाइज करता ही हूँ, बट मैं नेक्स्ट चैप्टर में ये वापस एक बार रिवाइज करूँ. ठीक. सो नाउ 1 मिनट, डोंट लीव. हाँ, आई स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन और मैं इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ. क्या बोलते हैं, मोबाइल का. एंड आई विल शो यू कि वो ऐप पे कहाँ पर है वो.
Okay, but that app is actually very, very helpful. Don't say stop this. Okay, 1 minute. I'll share my. Okay. Is my screen visible? I guess it's visible, right? Mobile screen is visible, right? Yes. Okay. So now see, this is that app. I'll just so this is that app. तो you see इधर जाओगे वो लाइंस लाइंस थे वहाँ पे ऑफिशियल पे जाने का नीचे स्क्रॉल करो फिर आएगा काउंटिंग है देखो इतना सब काउंटिंग का वो लोग का लिस्ट है ये सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है इसमें से कौन सा पढ़ना है फर्स्ट ये काउंटिंग वाला ये नहीं उसके ऊपर वाला भी कर लो नंबर्स क्योंकि आपको नंबर्स अभी अभी न्यू न्यू था तो देखो जीविची ये सब है फिर यहाँ पे मैंने अभी वो याकू का पढ़ा है वो भी रहेगा हाँ वो भी है तो याकू का भी है देखो याकू नियाकू साम्ब्याकू योम्ब्याकू देखो योम्ब्याकू है देन गोयाकू रोप्याकू ये सब है यहाँ पे देन सेन का है मान का देन द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो आपको आएगा नहीं वो है ये जिसमें कि देखो कितना जीरोस है अगर 8 जीरोस रहेगा तो ओक्कू हो जाता है ओके सो ये आपको नहीं है तो इसका नहीं किया था भी चलेगा ओके देन द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है हितोत्सु फुतारी मित्सु योत्सु इत्सुत्सु मुत्सु नानात्सु यात्सु कोकोनोत्सु तो सब आपको करना है नीचे क्वेश्चन वर्ड भी दिया है कि इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है इकुत्सु ओके आई एम ऑडिबल राइट वन मिनट यस आई एम ऑडिबल फाइन सो ये था पीपल का नहीं है ना हाँ काउंटिंग पीपल करना है आपको फिर इतोरी फुतारी सानिन योनिन गोनिन रोकुनिन नानानिन हाचिनिन क्यूनिन जूनिन सिंपल है सिर्फ इतोरी फुतारी अलग है इसमें सो ये याद करने की जरूरत नहीं है फिर काउंटिंग एज करना है ना क्योंकि एज भी हो गया तो इस साई नी साई सान साई योन साई गो साई रोकू साई राना साई हस साई यू साई जुस साई एंड हताची तो इधर एक्सेप्शन क्या है इधर एक्सेप्शन है फर्स्ट वाले का क्योंकि उधर स्मॉल जो आता है तो हो जाता है इस सही फिर देन 8 वाले का हो जाता है हस सही एंड देन 10 वाले का हो जाता है जुस सही एंड देन हाथाची विच इज 20 वो भी अलग होता है ओके फिर ये थिन का गरजने पुक्का गरजने क्लोज क्लोज हाउस फ्लोर्स अभी फ्लोर्स आया करके फ्लोर का करना है सो फ्लोर का देखो इक्काई नीकाई सांगाई गाई तो अगेन 3 वाला इज अलग देन योंकाई गोकाई रोक्काई 6 वाला अलग है नानाकाई हक्काई 8 वाला अलग है क्यूकाई जुकाई एंड नांगाई ओके सो मोस्टली देखो अलग कौन सा रहता है पता है 3 6 एंड 8 इनका ही मोस्टली अलग रहता है बीच बीच में 4 का भी अलग होता है कभी कभी उसमें न नहीं लगता डायरेक्ट यो आ जाता है ओके मोस्टली 3 6 एंड 8 का ही रहता है और कभी कभी फर्स्ट का ओके फिर ये फ्लोर्स हो गया तो ये आर्स वाला है वो करना है इचिजी निजी ये तो सिंपल है इधर डायरेक्ट जीजी लगाना है कुछ इसमें ये नहीं है फिर ये करो मिनट्स ओके गॉट इट और फिर आपको चाहिए तो ये भी कर सकते हो मंथ्स मंथ्स डेज ऑफ वीक ओके गॉट इट आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग नाउ okay so I guess we'll stop today I took your 10 minutes sorry for that okay so you may leave the lecture now thank you very much arigatou gozaimasu jamata मुकुयोबी नहीं मुकुयोबी नहीं गेत्सुयोबी मतलब we'll see you on next Monday mostly okay I just want to tell you don't leave कभी कभी टाइमिंग में अभी फ्लक्चुएशन रह सकते क्योंकि माय कॉलेज हैज स्टार्टेड सो समटाइम्स आई हैव इवनिंग प्रैक्टिकल्स सो तभी थोड़ा सा ये होता है ओके या सॉरी सो यू मे लीव नाउ थैंक यू वेरी मच